Okay, let us discuss this. We have discussed in the previous class that inverse of a matrix by elementary operations. So elementary operations we have discussed in the previous class. So these elementary operations जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये elementary operations यूज होते हैं टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। एक किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। So let us discuss how to use these elementary operations to find out the inverse of inverse of any matrices. Okay, just read this line written on the screen. Let X, A, and B be matrices the of the same order such that X is equals to AB. In order to apply a sequence of elementary row operation on the matrix equation X is equals to AB, we will apply these row operations simultaneously on X and on the first matrix A of the product AB on RHS. Okay, let me explain this thing. What is given in this? Suppose दो मैट्रिसेस हैं A और B, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाती हैं। सच दैट X इज इक्वल टू AB, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, X के इक्वल आ गया, राइट। इन ऑर्डर टू अप्लाई जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो अभी इफ यू नीड टू अप्लाई द रो ऑपरेशंस, राइट। So there are two type of operation. One is row operation and one is column operation. The three elementary operations we have discussed on row and three elementary operations we have discussed on column, right? So matrix is equation. So equation is written like this: X is equal to AB, right? Now we apply these row operations simultaneously. तो अब हमें दोनों ऑपरेशन simultaneously लगाने हैं किसके ऊपर? X के ऊपर and on the first matrix is A के ऊपर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है X is equal to AB, right? So now we need to apply the operations, these elementary operations on this X and on this A simultaneously. Simultaneously on both the sides we have to apply these operations of the product AB on RHS, right? So if we, when we solve the questions, this thing will be, you have got some little bit idea from here what we are going to do, and when we discuss it with the help of the example and with the help of the question, then this thing will be completely clear to you. Now look at this. Look at this. What is written here? Sanya Malik, could you please read this? Yes, sir. Similarly, in order to apply a sequence of elementary column operations on the matrix equation X is equal to AB, we will apply these operations simultaneously on X and on the second matrix B of the product AB on RHS. Okay. So what is given here? Similarly, in order to apply the sequence elementary, look at this. Elementary column operations हम लोग लगाएंगे. And in the previous thing, we have discussed elementary row operations, right? On the matrices same है, X is equal to AB पे एक equation होगी, X is equal to AB. इस पे हम लोग apply करेंगे elementary column operations, right? इसमें एक डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली x के ऊपर और b के ऊपर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। सो ये रिटर्न है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बी, लाइक दिस। सो हम लोग कॉलम वाले में किस पे ऑपरेशन लगाएंगे? x पे और b पे। और अपने पीछे अगर आप देखेंगे रो वाले में किस पे लगा रहे थे हम लोग ऑपरेशन? x एंड a पे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड इन रो एंड इन कॉलम। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑन विच मैट्रिसेस वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन? तो x के साथ किस पे ऑपरेशन लगाना है? b पे। तो अभी आपको बस जितनी चीज बताई जा रही है इतनी समझ में आ रही है, तो दैट्स एनफ। सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर नाउ। Look at this. Look at this. What is written here? Harsh Upadhyay, could you please read this? In view of the above discussion, we conclude that if A is a matrix such that A inverse exists, then to find A inverse, use elementary row operation, write A equal to IA and supply a sequence of a row operation on A equal to IA till we get I equal to BA. The matrix B will be the inverse of A. Similarly, if we wish to find A inverse using column operation, then write A equal to AI and supply sequence of a column operation on A equal to AI till we get I equal to A. Okay, now let me explain this thing in a simple word. What is written here in these lines? So in these lines, basically they are talking about the two operation. One is row operation, elementary row operation, and one is column operation, elementary column operation, right? So let me tell you first about this elementary row operation. So they says that to find out the inverse of any matrices,
if it exists, right? So to find out the inverse by using the elementary row operations. तो elementary row operation से inverse कैसे find करेंगे? उन्होंने बोला पहले आप a equal to ia लिख लीजिए, a equal to ia, and it's right. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम, राइट? देन दे सेज दैट फिर इस पे आप कॉलम रो सॉरी देन आफ्टर दैट दे से दैट अप्लाई द रो ऑपरेशन ऑन दिस. रो ऑपरेशन किस पे लगेंगे? अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था? इस वाली मैट्रिसेस पे और इस वाली पे. इफ इट इज रो ऑपरेशन अप्लाइंग, सो ऑन दिस पहली पे और इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट? रो ऑपरेशन से अप्लाई कीजिए. उन्होंने बोला रो ऑपरेशन अप्लाई करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? रो ऑपरेशन से अप्लाई करने पे हम लोगों को इट इज रिटन हियर, लुक एट दिस, तब तक अप्लाई कीजिए जब तक i इक्वल टू बी ए ना आ जाए. तो बेसिकली ये a कन्वर्ट हो जाएगा i में. हमें इस तरह से ऑपरेशन से अप्लाई करना है. इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस बना देना है, ठीक है? और ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस, इस पे भी ऑपरेशन साइड बाय साइड लगते रहेंगे. तो ये चेंज हो जाएगा b में, ये इट बिकम सम डिफरेंट मैट्रिक्स. तो जो a था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स थी इट बिकम सम डिफरेंट मैट्रिक्स, राइट? एंड देन दिस a तो एज इट इज लेके चलना है हमें, एज वी हैव डिस्कस दिस a एज इट इज, राइट? इतना करने के बाद, राइट, इतना करने के बाद दे सेज दैट b विल बी द इनवर्स ऑफ a. तो उन्होंने बोला a का इनवर्स क्या होगा? अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो a का इनवर्स जो होगा, द b ऑब्टेन्ड हियर इन दिस, द b ऑब्टेन्ड हियर इज द इनवर्स ऑफ a. अभी आपको 30-40% समझ में आता जाएगा कि हो क्या रहा है, करना क्या है. when we solve the question based on this, then it will be completely clear to you, right? तो ये उन्होंने बताया है. अभी एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कंसेप्ट का, तब आप क्वेश्चन करेंगे और फिर इस कंसेप्ट को दोबारा से लिंक करेंगे हम लोग, तब आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं. कॉलम ऑपरेशंस देखिए. कॉलम ऑपरेशंस के लिए उन्होंने कॉलम ऑपरेशन के लिए भी बोला है. कॉलम ऑपरेशन के लिए इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स यूजिंग द कॉलम ऑपरेशन, राइट a इक्वल टू ai. देखिए डिफरेंस देखिएगा क्या लिखवा रहे हैं यहाँ पे. a को बोल रहे हैं, a को लिखो ai के इक्वल, a इक्वल टू ai. इसमें देखिए रो में a इक्वल टू i a बोला था उन्होंने, ठीक है? इसका भी एक लॉजिक है क्यों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और इससे क्या, अगर इसको ऐसे ना लिखें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप देखें तो a है, a को i से मल्टीप्लाई करो या i को a से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा. उससे क्या फर्क पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम सेम. 1 से मल्टीप्लाई करो किसी को तो सेम आएगा. 1 into 4 करो या 4 into 1 करो, आएगा तो 4 ही. यस, ये सेम 4 ही आएगा. But if the concept it is a little bit broad concept, we will discuss it sometime later. So यहाँ पे i को पहले और बाद में रखने से ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. मल्टीप्लीकेशन ए बी बी ए के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है इन ईच एंड एवरी केस, राइट? सो अब मैं इसको यहीं पे आ जाता हूँ. लेट कम बैक टू द टॉपिक हियर. ए इनवर्स फाइंड करना है कॉलम ऑपरेशन से, राइट? a इक्वल टू ai. पहले a को ai के इक्वल रख लेना है, और यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कॉलम वाले में, इस पे लगाएंगे और ऑपरेशन इस पे लगेगा, ठीक है? इसीलिए i को बाद में रखा है. इस पे ऑपरेशन लगेगा और इस पे ऑपरेशन लगेगा, और ये a कैसा रहेगा? आइडेंटिकल. ऑपरेशन कब तक लगेगा? जब तक ये a बन ना जाए a इक्वल टू ai. तो ये चलते 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 ऑपरेशन से हम लोग अप्लाई करते जाएंगे a इक्वल टू ai पे. सॉरी, ये बनेगा ए आई इज इक्वल टू, ए कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में. ये ए पे कुछ नहीं करना, दिस ए एज इट इज रहेगा. ऑपरेशन इन दोनों पे लगाने, ए पे और आई पे. आई चेंज हो जाएगा किसी दूसरी मैट्रिसेस की फॉर्म में. आई मान लेते हैं आई चेंज हो गया बी में, ठीक है? ये रिलेशन आपको मिल जाएगा. सो देन दैट्स ऑल. सो द इनवर्स इन दिस केस ऑल्सो, द इनवर्स इन दिस केस, द ए इनवर्स इज बी. तो a का इनवर्स क्या होगा? b हो जाएगा. ये क्यों बोल रहा हूं? इससे मैं ऐसे कैसे कंक्लूड किया, यहाँ पे भी कैसे कंक्लूड किया मैंने a इनवर्स. तो देखो जब इस a को इधर लेके जाओगे i के पास तो ये a इनवर्स बन जाएगा. तो इधर क्या बचेगा? b बचेगा, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज 30-40% it is, you have got the idea what we are going to do in this to find out the inverse by using the, in this topic, by using row operations or column operations. Now let's move forward here. Look at this remark. Pranjali, could you please read this remark? In case after applying one or more elementary row or column operation on A is equal to
inverse of A. If we obtain all zeros in one or more rows of the matrix A on LHS, then A inverse does not exist. Very important thing they have delivered here. A inverse exist नहीं करेगा. A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमें A इनवर्स तभी फाइंड करना है जब A इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. तब A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग उसको फाइंड कैसे करेंगे? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? अब हमें पता कैसे लगेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट? लुक एट दिस, इट इज रिटन हियर. In the case after applying one or more elementary row operations on A equal to AI, जो रो A ये हमने देखा था यहाँ पे. Let me link this concept with the previous thing. हमने लिखा था A equal to IA रो operations के लिए, राइट? फिर हमने ऑपरेशन से अप्लाई किया था इस पे और इस पे, ठीक है, एलिमेंट्री. दिस इज सेम. इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे जब इसमें अगर किसी एक रो में 0 0 आ गया, कंप्लीट रो एलिमेंट इज 0, और वी कैन से दैट कंप्लीट कॉलम एलिमेंट इज 0, और कंप्लीट या कॉलम के एलिमेंट 0 आ जाए, या पूरी रो 0 हो गई या पूरा कॉलम 0 हो गया, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? लेट मी लिंक विद दिस कंसेप्ट हियर. लुक एट दिस. यहाँ पे देखो A था और I था. जब हम लोग इस A के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इस A के ऊपर, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बनाने वाले थे हम लोग, इसी बीच में क्या होगा, उसकी कोई भी रो, कंप्लीट रो के एलिमेंट 0 हो गए या किसी भी कॉलम के एलिमेंट सारे एलिमेंट 0 हो गए, उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा. सिमिलरली कॉलम के लिए बोला है उन्होंने. ऐसे ही जब हम लोग इस A को सोल्व कर रहे होंगे कॉलम के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बनाने के लिए, अगर उसी बीच में कुछ ऑपरेशंस लगाने के बाद 1 or 2 or 3 operations after applying that operations, right? So then if any row or any column element will become equal to 0, all the elements, right? So then in that case inverse does not exist. I hope this conditions when inverse does not exist is little bit clear to you. Now let's solve some questions based on this, then this concept will be more clear to you what we are going to do in this concept, in this exercise. अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे. ओके, लुक एट दिस. 2 into 2 के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में. थ्री इंटू 3 के क्वेश्चन आते थे. 5 मार्कर में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से. अब जो कहानी सुनाई है मैंने आप लोगों को अभी, ये कहानी मुझे लगता नहीं आप लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा या आप लोगों को ये कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी. आई डोंट थिंक सो. अगर, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उस कहानी को आप याद कीजिएगा. उस कहानी के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, एंड देन दैट विल बी 100% क्लियर टू यू व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट दैट टाइम. यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ओके, इनवर्स फाइंड करना है. इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन 1 to 17 में, क्वेश्चन 1 ले लिया मैंने. अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंडीशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, देखेंगे इस क्वेश्चन में. लुक एट दिस. सपोज इसको मैं मान लेता हूं A. सपोज आई लेट दिस मैट्रिसेस एज A. Okay, so A is equal to this 1 minus 1 2 3, right? A is equal to this. So I am going to apply the row transformation, elementary row transformation. कोई भी मैं लगा सकता हूं. इन्होंने elementary transformation बोला है यहाँ पे. This says that only elementary transformation. So we have the two methods, two operations by elementary transformation. We have the two things. Row elementary transformation कर सकते हैं
कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं. सो लेट मी सोल्व दिस बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. मैं यहां पे अप्लाई करूंगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. कंसेप्ट से लिंक करूंगा आपको. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में पीछे लेके चलता हूं क्या करना था. ये देखिए, ये रो के लिए बताया था थोड़ा सा, ये कॉलम के लिए बताया था क्या करते किस किस पे लगाना है, ये बताया था. रो ऑपरेशंस के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे रो ऑपरेशंस के लिए a इक्वल टू आई ए लिखना है, फिर उसको सोल्व करना है. राइट. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. So in the concept, what we have to do, a is equal to I, a we first we need to write this thing, a equal to I a. Okay, so what is I, what is a is 1, minus 1, 2, 3. What is I is identity matrices होती है, this one is I, right, and this a as it is, ये हमने डिस्कस किया during the concept when we were discussing the concept, this a as it is. ऑपरेशंस किस पे लगेंगे, इस ए पे और इस आई पे ऑपरेशंस लगाते हैं. ऑपरेशंस आपको याद होंगे, वी हैव डिस्कस द ऑपरेशंस आल्सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट. अब आपको फिर से एक बार मैं फिर से बता दूंगा साइड बाय साइड. इसको बनाना है आई के इक्वल, इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यस 1 है तो नो प्रॉब्लम, ये 1 चाहिए मुझे. आई बनाना है इसके जैसा, अब ये है ऐसा, बड़ा होके इसको बनना है इसके जैसा. ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा इसके जैसा. आफ्टर राइटिंग दिस ए एंड दिस, इस पे हमें ऑपरेशंस लगाना है. ये देखो आइडेंटिटी बनाना है इसको, तो ये 1 है, इसको इस 2 को 0 करना है हमें. राइट, तो ये 2 0 कब होगा, लुक एट दिस. अगर मैं रो 2 में ऑपरेशन लगाऊं, ये ऑपरेशंस देखिएगा, दिस इज द ऑपरेशन 3. अगर इस रो 2 की जगह पे क्या लिखूं, रो 2, अगर फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये एलिमेंट 2 हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस कर दूं इसको रो 2 में से, तो सेकंड को 2 रो 1 कर लिया मैंने. सो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, मल्टीप्लाइड रो 1 विद 2, एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड मैट्रिसेस से. तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, लुक एट दिस व्हाट हैपन हियर. सो आई एम चेंजिंग रो 2 को मैं चेंज करने वाला हूं ऑन बोथ द साइड्स. राइट, and this is as it is, and there is no change on the row 1 also. row 1 भी same रहेगी, row 1 is same, 1 minus 1 1 0. I am going to change this row 2. this row 2 को मैं चेंज करने वाला हूं, कैसे, r2 minus 2 r1. देखो यहां पे रखिए, यहां पे जो एलिमेंट आएगा रो 2 की जगह पे क्या रखना है, रो 2, this we need to put this thing. सो अभी मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखता हूं इसको समझने के लिए, आगे जाके हम लोग इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगेंगे. देखो रो 2 कितना है, रो 2 की जगह पे लिखना है 2 माइनस 2 इंटू रो 1 कितना है, रो 1 है 1. राइट, ये एलिमेंट आएगा. यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, रो 2 कितना है, रो 2 इज 3 माइनस 2 इंटू रो 1 कितना है, रो 1 इज माइनस 1, लाइक दिस. सो आई एम राइटिंग एट द प्लेस ऑफ, आई होप यू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट, एट द प्लेस ऑफ रो 2 आई एम राइटिंग दिस थिंग एट द प्लेस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे मैंने ये रखा है. राइट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस एलिमेंट्स. सो यहाँ पे आएगा दिस, लुक एट दिस, रो 2 लिखेंगे पहले, रो 2 है 0. ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, फिर रो 1 की वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज रो 1 इन दिस केस, इट्स 1. राइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, रो 2 रखेंगे, रो 2 कितना है 1, फिर माइनस लगाएंगे, 2 रखेंगे और रो 1 रखेंगे, रो 1 कितना है 0 इंटू 0. राइट, नाउ लेट मी राइट इट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म हियर. सो जब हम थोड़ा प्रैक्टिस में हो जाएंगे, व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो डायरेक्टली वी कैन राइट द नंबर्स. सो दिस विल बिकम 2 minus 2, it becomes 0, and 3 plus 2, it becomes 5. Right, now here it is 1 0, it will become minus 2 here, and it become 1 here. Right, and this is as it is. I hope this operation is clear to you. The first operation I have applied here, little bit clear to you. So I am just trying to make these matrices as identity matrix. So ये element 0 हो गया, इसको 1 करना है, तो 1 मैं बाद में करता हूं. तो we will do make it 1 at the end stages of the question. Otherwise the calculations will become little bit
कॉम्प्लेक्स, सो वो अभी आगे देखेंगे हम लोग कैलकुलेशंस कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब मुझे इसको जीरो करना है आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब इसको कैसे जीरो करूं, कब होगा जीरो ये? अब इसको अगर मैं यहाँ पे 5 होता है, अगर यहाँ पे 5 होता तो इसमें ऐड कर देता इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मल्टीप्लाई दिस रो 1, लेट मी मल्टीप्लाई दिस रो 1 विथ 5। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ऑपरेशंस को फिर से देखना है तो यू कैन गो टू द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस। अब देखिए ये ऑपरेशंस कैसे लगेगा, सिंपली ऑपरेशंस लगेगा ये। तो देखिए किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 1 पे। तो रो 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 2 को एज इट इज लिख देता हूं, 0 5 -2 1 एंड दिस ए एज इट इज, राइट। अब रो 1 पे ऑपरेशंस लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, बेसिकली रो 1 की जगह पे 5 रो 1 लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिस इज रो 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच एंड एवरी एलिमेंट, 5 -5 5, दोनों तरफ ऑपरेशन लगाने हैं। कई बार द कॉमन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन इज एक तरफ ऑपरेशन लगा देते हैं, एक साइड सेम लिख लेते हैं। तो ऐसे एम्प्टी छोड़ देना है, दिस इज द वे टू रिड्यूस द मिस्टेक, 0, राइट। आपकी 1 मिनट और लूंगा मैं, टाइम अप हो गया है वैसे, 1 मिनट और लूंगा, देन दिस क्वेश्चन विल कंप्लीट। नाउ लुक एट दिस, टू मेक इट इक्वल टू 0, इसको 0 करना है तो रो 1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, रो 1 में अगर इस रो 2 को ऐड कर दूं अगर यहाँ पे रो 2 तो 0 हो जाएगा। नाउ लेट्स मी अप्लाई दिस ऑपरेशन हियर। लुक एट दिस, किस में चेंज कर रहे हैं, रो 1 में, तो रो 2 को सेम लिख लेता हूं, रो 2 में तो कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, -2 एंड 1। अब रो 1 में क्या चेंज कर रहे हैं, रो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, रो 1 प्लस रो 2। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें ये 4 एलिमेंट निकालने हैं। रो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, इसमें रो 1 कितना है 5 प्लस रो 2 कितना है 0, 5 प्लस 0। यहाँ पे रो 1 इज -5, राइट, प्लस दिस प्लस साइन, देन रो 2, व्हाट इज रो 2, रो 2 इज 5, राइट। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज रो 1 हियर, रो 1 इज 5 प्लस रो 2 कितना है -2, so -2, what is this, 0 plus 1, right। पूरा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, इट डू नॉट टेक सो मच टाइम, so I am trying to explain it to you in very detail, so then it will be clear to you, then you can skip the various steps when you are solving this question. Look at this, so it can be written as 5, it can be written as 0, it can be written as 5 -2 3, इट इज 1, ये -2, ये 1, ये 0 और ये 5। अब देखिए, अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना है, इसको 1 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए। सो नाउ लेट मी अप्लाई दिस ऑपरेशन 1/5 R1, तो मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और R2 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। नाउ लुक एट दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रोमन है, रोमन को क्या करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट को 1/5 से इट बिकम 1 0। ये देखिए ये एलिमेंट बन जाएगा 3/5, दिस एलिमेंट विल बिकम 1/5, राइट। अब देखिए रो 2 में, दिस इज रो 2, आई एम ऑल्सो चेंजिंग रो 2, सो रो 2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं 1/5, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 को करेंगे तो 1/5, -2 को करेंगे तो -2/5 और 1 को करेंगे 5 से डिवाइड तो 1/5। नाउ लुक एट दिस, अब ये क्या हो गया है, एज वी हैव डिस्कस, दिस इज आई, ये बन गया बी, ये कुछ चेंज होके बी बन गया एंड दिस इज ए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस कंसेप्ट क्लास, सो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, बी के। सो व्हाट इज बी इन दिस केस, बी क्या है यहाँ पे, दिस इज बी, सो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। सो ए इनवर्स इन दिस केस इज 3/5 1/5 -2/5 1/5। I hope this question is little bit clear to you how to find A inverse. When we do several more questions, then this concept will be more clear to you. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing in the next class. Anyone else whose attendance has not marked? Sir, I have one question. Yes. सर ये जो आपने क्वेश्चन करा है सर, लास्ट स्टेप में आपने 1 0 1 और 1/5 लिखा है, तो 1 होना चाहिए था ना, 1/5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 बचेगा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, देखता हूँ एक सेकंड। सर Yeah, इधर which यहाँ step? पे
सर ये बिल्कुल नीचे वाले से ऊपर पार्ट में यहाँ पे ग्रीन वाले टेक्स्ट से ऊपर जो आपने व्हाइट में लिखा है, यहाँ पे, नीचे यहाँ पे। इसमें है सर। सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 0 0 1/5 रहती है, 1 होगा ना? Yes, yes, you are absolutely right. So I have done a little bit mistake here. So this is equal to 1, right? So then it Yes. become identity matrix, right? Okay. Yes. Thank you, Sanya. Thank you, sir. That's all for today. Rest of the thing in the next class.